ओम साईं। सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्संग में। आज बाबा की कृपा और उनकी अनुमति से हम फिर से जुड़े हैं इस हफ्ते के सत्संग में। और बाबा ने हमें वरदान स्वरूप भाई जी को भेजा है हमारी शंकाओं का निवारण करने के लिए। आपका स्वागत है भाई जी। आभार फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, फॉर बीइंग विद अस एवरी वीक। एम आई ऑडिबल? Yes, yes. यस। Am I Yes, audible? yes, जी जी yes. भाई जी। जी जी। ओम साई। ओम साईं भाई जी। जी ओम साई, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है। Thank you for being with us and taking us through this wonderful spiritual journey every week. सभी भक्तों से निवेदन है, आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर खुद हैंड रेज करके डायरेक्टली भाई जी से पूछ सकते हैं। We have a long question, someone iPhone, I guess it is Vijay ji. We'll begin with that. Om Sai Ram. Apologies for the long question. How do we learn to love God, whom we have not seen in physical form and is less relatable, being a higher power? In contrast, from childhood, we naturally learn to love parents, siblings, friends, and even pets or plants because they are tangible and relatable. Further, many of us are told from a young age that God is watching or God will punish wrongdoing. God puts you to severe tests which can create fear rather than love. It leaves us feeling judged and more often questioning ourselves if we are worthy of God's love. My questions are: number one, should we love creator or should it be better that we love creation, that is people, animals and plants, etc.? Or is creation all maya, so we love only God, the creator? Okay, the second one is, if God should be the target of our love, how do we develop love for an unseen, abstract, higher being? Number three, how do we move from fear of God to love for God? Or can fear and love coexist? Om Sai Ram. ओम साई, मेरे अंदर बैठे साई का आपके अंदर बैठे साई को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। All of you, please excuse me for sipping my filter coffee in between intermittently because I've just scampered home after a long day in office and after a tedious traffic. So please pardon me. Vijay ji, as always, your question is very, very intriguing and warrants a long, long, long explanation. Uh, would you mind to unmute yourself for a while? Yeah, Bhaiji, Yeah. definitely. All right. You are bang on when you say that instead of a God loving society, we have actually become a God fearing society. While God is not to be something that is scary or anything that we should be worried about. Yeah, because I thought Bhaiji, the last satsang mein that there was a person who was upset actually, saying she was fearing that God will punish her. She was in a negative zone actually. So if you And and remember, and I told her that no, God doesn't is not meant to punish us, yeah, right? yeah. So But we God all is have this fear, definitely no? We all have this fear of being judged by God, right? Are we worthy of His love? that is a wrong notion, perhaps. That is a wrong notion. God doesn't judge us. His love for us is unconditional. The very fact that we have been sent by Him, adorning this perhaps the most known and understood wonderful incarnation of a human being. जितना हमको पता है विजय जी, उन सब में मानव जो है अभी तक, जितना मैंने कहा ना, हमको पता है, जितना हमारे ज्ञान चक्षु देख पाए हैं, जितना हम समझ पाए हैं, ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू बी द बेस्ट स्पीसीज
and we have been given this form of a human being, and we have been sent, bears a testimony to the fact that God loves us unconditionally. What has happened over the years is that because of our social and mental makeup over the years, and owing primarily because of our long lasting uh, slavery. We have been slaves, this particular country and its people have been slaves for a very, very long period of time. For generations, we have been slaves, first by the Mughals and then by the Britishers. So, what has happened? In order to safeguard the identity of God, our bygone generations, and I'm not sure when would this have happened, to safeguard the identity of God and to attract the forthcoming generations towards this concept of God, this entire thing of God fearing society was contrived and conceived. So, what has happened over the period of years, because even if you read all these kathas, Beat Satyanarayan Katha, be it XYZ Mahavaibhav Lakshmi Katha or Sheetla Mata Katha or Santoshi Mata Katha, every Katha teaches us to be righteous. And if we are not righteous, and if we are not someone who can uh, be fearful about doing anything wrong, then we have been shown the path of punishment. गरुड़ पुराण says कि तुमने ऐसा किया तो तुम नरक में चले जाओगे. सत्यनारायण भगवान की कथा में हमको बतलाया जाता है कि तुमने अगर ऐसा पूरा नहीं किया तो तुम्हारी नाव डूब जाएगी, तुम्हारा पैसा चला जाएगा, तुम बंदी बना लिए जाओगे, ऐसा हो जाएगा, XYZ. एक्चुअली इन कथाओं का मतलब था कि हम लोग सही रास्ते पर चलें, बट हम लोग ने सही रास्ते पर चलना नहीं चुन करके हमने जो इजी वे आउट था कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको सही काम करना, ये हमने नहीं सोचा. हमने सोचा कि हमको गलत काम नहीं करना है. तो वो गलत काम नहीं करने के अंदेशे में हम लोगों ने गॉड को एक टेररिस्ट बना लिया कि नहीं यार, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमने ऐसा किया तो हमारे साथ कितना अच्छा होगा. तो वो एक जो चीज है वो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान किया है वो हमारे धर्म के ठेकेदारों ने किया है, जिनको मैं आई नो मुझे बहुत लोग बुरा मानेंगे इस बात को कह करके कि ये जो पंडे पुजारी ज्योतिष, इन लोगों ने हमको बहुत डरा दिया है. इनको दरअसल धर्म का मतलब ही नहीं पता है कि क्या है, कि हाउ टू अप्रोच राइटियसनेस, हाउ टू इम्बाइब राइट वर्च्यूज इन आवर पर्सनालिटी. तो ये लोगों ने क्या किया कि आपने मरने के बाद, आपकी माँ के मरने के बाद, आपके पिता के मरने के बाद आपने बछिया दान में नहीं दी तो आपके घर में ये नुकसान हो जाए. आपने सोने की शैया दान में नहीं दी तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा ना. ये कभी ऐसा किसी पुराण में नहीं लिखा, किसी उपसंहिता में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है. वेदों ने और एवरी रिलीजियस स्क्रिप्चर राइट फ्रॉम आवर एंशिएंट बीइंग, उसने हमको सिखाया है कि हमको एक अच्छा इंसान बनना है. तो ये बीच में की कुछ जनरेशन्स जो है उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, जिनको पता ही नहीं कि धर्म क्या है, धर्म इज बीइंग राइटियस, इसके अलावा धर्म की और कोई डेफिनेशन है ही नहीं. धर्म सभी जो है वो है कि किसी पे आप डोंट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन एनीबडी, डोंट इंडल्ज इन गॉसिप मॉन्गरिंग, डोंट इंडल्ज इन टेलिंग लाइज, take the side of truth. Everybody knows that one day we'll all have to die, and before we die we have got to do something which is worthwhile. We've got to justify our being. ये सब चीजें हमको जो है वो करनी है, वो सब धर्म में लिखी हुई हैं और वो धर्म ही हमको समझाता है. बट हम लोगों ने धर्म का मतलब कर्म कांड समझ लिया और वो कर्म कांड से डर उत्पन्न हो गया.
ना मैं वही कहता हूं कि हमने ये जनेऊ पहना है, जनेऊ पहना है तो उसको कान पे लपेटना, अब कान पे लपेटना है शौच करते समय या डिफेकेटिंग करते समय, यूरिनेटिंग करते समय, तो क्या होता है कि उसको कान पे लपेटने से एक एक्यूप्रेशर जो होता है, जो हमारे बावल मूवमेंट्स को जो है वो इंस्टिगेट करता है, so that we defecate smoothly. ये कुछ चीजें हैं। लेडीज में कान को छेदना, जेंटलमैन में कान को छेदना, वो भी उसी प्रकार उसी चीज का हिस्सा है। या हम हमारी सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे तिलक लगाते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे वो, क्योंकि अब जैसे ही हमने यहाँ पे केवल उंगली थोड़ी सी दूर रखी है दोनों हमारी आईब्रोज के बीच में, तो वहां पे हमको इरिटेशन लगने लगती है। तो देयर इज समथिंग देयर विच गेट्स इरिटेटेड बाय मियर सेंसेशन। तो जब हम उस चीज को वहां पर, हम कोई पवित्र चीज लगाते हैं, ठंड गर्मी के दिनों में चंदन लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं ठंड के दिनों में, तो वो वहां पर उस चीज को स्मूदन आउट करने के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड एवरी कर्मकांड दैट वी परफॉर्म। बट व्हाट हैज हैपेंड कि वो कर्मकांड कराने वालों को भी नहीं पता कि कर्मकांड हम लोग क्यों करते हैं, कि हम जो है वो कुशा के आसन पर क्यों बैठना चाहिए, या हमको पीठ जो है वो लगा करके जमीन से क्यों नहीं सोना चाहिए, या हमको नॉर्थ साइड में अपना सिर रख करके क्यों नहीं सोना चाहिए। ये सब चीजें जो है वो हमको कभी वास्तु शास्त्र के नाम से, कभी हमको इन चीजों के अंधविश्वासों के नाम से डरा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इनके पीछे का साइंस है क्या। इसका हम कारण एक मान सकते हैं कि बीच में जो हमारे गुलामी के साल रहे, द इयर्स ऑफ आवर स्लेवरी, हमारा लिटरेसी रेट एकदम गिर गया। तो वो लिटरेसी रेट गिरने से क्या हुआ कि जस की तस चीजों को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और उन चीजों को एक्सेप्ट करके हमने अपने आप को, पूरी जनरेशन को एक अज्ञान के अंधकार में धकेलना शुरू कर दिया। बाद की परेशानियां शुरू हो गई जब हमने एक अच्छे बर्ताव को, कि कैसा हमको बिहेवियर रखना है, उस चीज को मॉरल साइंस नाम दे दिया या वैल्यू एजुकेशन नाम दे दिया, और हमने उसको सब्जेक्ट बना के पढ़ाना शुरू कर दिया। नाउ दिस, your attitude or your behavior cannot be defined by a syllabi or syllabus. उसको आप ऐसा नहीं कर सकते। You cannot teach good behavior. You got to teach by example, not by textbooks. So ये कुछ चीजें जो हैं, इन चीजों ने मिला करके विजय जी, they have actually spoiled the entire concept of godliness. अब आपने मुझसे पूछा कि हाउ डू वी माइग्रेट और ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग अ गॉड फेयरिंग सोसाइटी टू गॉड लविंग सोसाइटी। वी कैन स्टार्ट नॉट एट अ मैसिव macro level, we can start at the micro level by teaching our children. Okay, it is by religious, it doesn't mean that we become all time we keep chanting mantras and doing all kind of rubbish which has very little meaning until and unless we understand that it has meaning. So अगर हम हवन करते हैं तो हवन करना भी क्यों चाहिए? Why? Because it purifies your immediate environment, the atmosphere which we say. It kills your very very microbacterias. So ये सब जो है, ये जिसको हमने, ये अंजलि जी का वही मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, कि वो संस्कार की बातें करती हैं। तो हमने जैसे विवाह को संस्कार की जगह हमने विवाह को इवेंट बना दिया, तमाशा बना दिया, हमारी एफ्लुएंस दिखाने का एक जरिया बना दिया। तो वो विवाह एक संस्कार है, वो दो लोगों की शादी है, दो लोग एक एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, उसको हमने तमाशा बना दिया। उसमें प्री मैरिज वेडिंग शूट, फोटो शूट भी हो रहा है, उसमें हम एक दूसरे के गले में बाहें डाल के घूम रहे हैं, उसमें हमने अपनी सारी मर्यादाएं भंग कर दी हैं, दारू की पार्टियां हो रही हैं, नॉनवेज में बकरे कट रहे हैं। वाई? क्योंकि आपके यहाँ बच्चे की शादी है, जितना ब्राइड का वजन नहीं होता उससे ज्यादा उसके लहंगे का वजन हो जाता है। हमने इतना सोना चांदी हीरे मोती में तोलना शुरू कर दिया। हमने हमने जो है वो गर्भाधान संस्कार के बदले हमने जो है वो बच्चों, जब माताओं के पेट में बल्ज रहता है तो उसकी फोटोग्राफी कराना शुरू कर दी ना। दिस हैज बिकम वेरी हॉरिबल। और उसमें, और जब इन चीजों में जब चीजें बिगड़ती हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि वेयर डू वी गो एंड सीक हेल्प और सॉलेस। Now that is where the concept of God comes in. Okay, when there's stark darkness all around,
the smallest, ray, the smallest ray of light is God. When you're disappointed with everybody you know, when you're disoriented, you don't know what to do, then the very fact, when you believe that God is all around, He's looking at me, He's taking care of me. If He has brought me here, He'll take me from here to the next point. That faith, God lies in your faith. भगवान ही श्रद्धा है, श्रद्धा ही भगवान है। इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब ये चीज होती है तो वो गॉड लविंग सोसाइटी बन जाती है, गॉड फियरिंग सोसाइटी नहीं बनती, क्योंकि गॉड फियर करने का विषय है ही नहीं, गॉड लव करने का विषय है। सो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम आवर होम. It begins from our home, from our own children, educating our children what God is all about, what Karma Kand is all about, how scientific those Karma Kands are. What is Vastu Shastra? Vastu Shastra is not all about tod fod, or not about your misfortune. If we follow the principles of Vastu Shastra, they bring about more prosperity. It is very very simple science कि यहाँ से सूरज की रोशनी ज्यादा आती है इस समय पर, तो आपके इस जगह पर रोशनी आनी चाहिए, यहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की नहीं है तो इस तरफ आपका सिर होना चाहिए, सो दैट द योर मैग्नेटिक फील्ड डजंट इंटरफेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. these are simple things. So विजय जी, नंबर वन, आपका जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने पहले एड्रेस कर दिया कि हाउ डू वी ग्रेजुएट फ्रॉम गॉड फियरिंग टू गॉड लविंग सोसाइटी. प्रीति जी, I'll ask you to repeat the other two questions. I'll take the first question, Baiji. So first question is whether we should love creator, or should we definitely love the or should we creator and the or the creation, creation. and the creation and creator through the creation. No, because ये जो sometimes it's माया more वाया है, relatable. ये सब It's more मैं आपको relatable. वही बता रहा हूँ, वो मैं आपके उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जो माया है जिसको आप कहते हैं कि आपको दिग्भ्रमित कर देती है, नो, आप कहते हो कि आपका फैमिली माया है. अरे है माया, मान लिया मैंने, बट मेरे जीने का आधार भी तो वही माया है. तो मैं उसको क्यों प्रेम ना करूं? मैं करूंगा प्रेम, बट मैं ये मानूंगा कि ये प्रेम मेरा जो है वो एक सीमित समय के लिए है. बाद में परिस्थितियां बदलने पर जो है मेरा प्रेम वैसा ही रहेगा, बट उसमें कंडीशन नहीं होगी कि सामने वाला भी मुझे प्रेम करे. आज मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रेम करता है जब वो छोटा है, जब वो मेरे पे डिपेंडेंट है. जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो वो शायद मुझ पे उतना प्रेम ना बरसाए, बट मेरा प्रेम अगर अनकंडीशनल है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी. ये है, इस तरीके से माया को कॉम्बैट कर सकते हैं कि उसका प्रेम हमारे प्रति कम हो जाएगा. फेयर एनफ, होना चाहिए, हो भी जाएगा. जिंदगी बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं. आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस है तो वो आपको प्रेम करेगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस है तो वो आपको प्रेम करेगा, आपके ऊपर फिलोसॉफिकल डिपेंडेंस है उसकी तो प्रेम करेगा, स्पिरिचुअली अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको प्रेम करेगा. बट वो जहां पर उसकी जरूरत है आपसे पूरी हो जाएगी, वो प्रेम उसका बदल जाएगा, उसके प्रेम का स्वरूप बदल जाएगा. जब उसके प्रेम का स्वरूप बदल जाए और आपका प्रेम उसके प्रति कम ना हो, then you are actually in love with the creator. Now this is how things have to be looked at. Okay. Because I was thinking that creation, sometimes it's in case of mother, for example, mother's love towards a son or daughter, right? Yeah. It is Definitely. it is unconditional. One day your mother will pass away. Yeah. Or if God bless her with a very long life and bless you too with a long life, but then somebody of you has to go before either. And when you go, उसमें जब तक आप हो, जब till the time you are there with her, or she is there with you, make the best use of the time, keeping in mind that one day this bond of this janam has to go to the winds. It'll vanish in thin air. So my question is whether we should love the creator or whether we should love the creation actually. Love the creator through creation. I'll give you a small example. What is an atheist? Atheist is somebody who doesn't believe in the existence of God, right? Correct. But if the atheist believes in his or her own existence, then I'll definitely won't call that person an atheist, because his shraddha is there. His shraddha is there in him or herself, which is a part of the creation of God. So you love the
creator through creation that will make things easier for you, जिसको हम कहते हैं सगुण साकार भक्ति। ये हमारा सगुण साकार भक्ति हो गई। हम अपनी गाड़ी के माध्यम से भगवान को पूजा करें, हम अपने माता पिता के माध्यम से करें, हम अपने काम धंधे के माध्यम से भगवान की पूजा करें, वो भी सब माया ही मानोगे आप। लेकिन वो क्रिएशन को हम मान के चलेंगे कि हमारा उसका नाता स्थायी नहीं है। अगर हमने ये मान लिया तो वो हमारे लिए भक्ति हमेशा के लिए इटर्नल हो जाएगी। You got to come to terms with with reality that nothing in this life is going to be permanent. Nothing in this life is ever going to be permanent. आप ही परमानेंट नहीं हो तो कहां से कोई चीज परमानेंट हो जाएगी? इसका गालिब का एक बड़ा अच्छा शेर है, न था कुछ तो खुदा था। आपको समझने में आसानी हो जाएगी इसलिए शेर पढ़ रहा हूं मैं। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये गालिब ने कहा है। तो translate in English actually for me. न था कुछ तो खुदा था, when there was nothing, खुदा, God was there. न होगा कुछ तो खुदा होगा, when there'll be nothing, there'll still be God. डुबोया मुझको होने ने, the entire flip side of my being, of my debacle is because I considered myself to be somebody worthy of respect, somebody worthy of or an instrument in my own ego. Even if I pass away tomorrow, Galib says, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। Even if I am gone, or even if I did not ever existed, what difference would have it made to the world? The world would still have functioned without me. So my problem is my being, the belief in my being that I am my world. I am not my world. This is such a beautiful philosophy. It is his world, and I'm a very tiny particle of his creation, of his world, of his existence. I'm a very tiny creation of his existence, and this is what exactly answers your question. So love the creator through creation. And what was the second question, Vijayji? Preeti, you want to read it? Sorry? Preeti, do you want to read it? I'm asking because she read it very nicely. You can actually. go ahead. You can go ahead. So if we decide to love God, right? If we decide God should be the target of our love, how do we develop love for unseen, abstract, higher being? Because in my view, it's easier to love creation as it is easier to access relatable, target, tangible, etc. No, very true. See, if you remember, like it's easier to love mother, father, parents, children, siblings, animals, dogs, pets, anything, right? But it's very difficult to love an abstract God. So, for example, Sai Baba is a picture for us. That is the reason Sai Baba has always professed that I am in every living being. और इसीलिए जब ये कथा की बाबा मुझसे शुरुआत कराते हैं तो वो कहलाते हैं मुझसे कि मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन. The Sai inside me pays obeisance to Sai inside you. So when we begin to see Sai in everybody, or when we begin to see the presence of God in every other creation, whether living or non-living, even things that we consider as non-living are actually living. No, Baiji, I think the problem is not loving tangible parents, friends, animals, and stuff. Yes, that is what I'm telling you. That is what I'm telling you. You haven't seen God, neither do I have seen God. Yeah, because right? when we see picture of God, right, we see different pictures of God. No, that is absolutely all credit goes to Ravi Verma, the painter, the celebrated painter who gave shape to our imagination, which we call as godly pictures, right? Yeah. So the pictures of God have all been painted by Ravi Verma in the modern context
And he deserves every credit for painting those lovely portraits that we, in some form or the other, distorted, improvised, we worship as gods. So you don't have to worship those pictures. If you are at a higher level of consciousness, you don't require any picture, you don't require any ornament, you don't require those pieces of cloths, you don't warrant any existence of God in a figure that we perceive God as. So God has no form. इसीलिए हमको ये जो माइथोलॉजी है, या जिसको हम कहते हैं कि जो ऊपर वाले की जो है एक हायरार्की है, विजय जी, आई टेल यू, इन हिंदू धर्म और सनातन धर्म एज वी कॉल इट, देयर इज वेरी वेरी क्लियर हायरार्की, राइट? हम कहते हैं ईश्वर, राइट? सबसे ऊपर होता है ईश्वर, which is unseen, which according to our Vedas has no definite form, no shape, no odor, no voice, nothing. And when उसने धरती बनाई, जो बिग बैंग थ्योरी से हमने माना कि चलो एक बहुत बड़ा कोलिजन हुआ, एंड देन एवरीथिंग गॉट क्रिएटेड. नाउ व्हाई डिड दैट collision happen, or why did that big bang theory happen? Right? That big bang theory happened because it was destined to happen. Some particles in the universe collided. Where did those particles come from? You have no answer to that. So we have got to believe in the existence of a superpower which we haven't seen, unheard of, right? Now, when that collision happened, and then those ice age and water age and all those ages happened, and finally we have come to this age, monolithic age, and whatever. We have come to this present modern day world, right? So all this creation happened. Now, when all this creation happened, this had to run. So it is believed in our Sanatan Dharma that Ishwar created Bhagwan. And Bhagwan came in three forms. Number one, the creator, which we known as Brahma, and not Brahm. Brahm is that unseen, almighty, one single power, which till today nobody has seen, only felt. That is called Brahma, the creator. Then Vishnu, the operator, one who operates the world. And then Mahesh, the god of destruction. So जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यहीं से वो चीज हमको समझ में आ जाती है कि जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर. तो गॉड की अवधारणा यहां से समझ में आती है. गॉड इज सेकंड इन द हायरार्की. हमारे में ईश्वर होता है, द ऑलमाइटी, द सुप्रीम बीइंग is at the top of the order, followed by God. And because God could not come to this planet in their own avatars, because they were super fine creations, and nobody would have recognized them. They would have found it very difficult to operate in this world. So then they came in form of avatars. So and Sai Baba, Guru Nanak Dev, Jesus Christ, Paighambar Hazrat Muhammad, Zarathustra, to the believers maybe Gautam Buddha, to the believer maybe Mahavir, anybody. Those are the avatars which come down taking as messengers of God. And Guru Nanak Dev Ji, Guru Gobind Singh Ji, they come as messengers of God, and they are called avatars. So this is a typical hierarchy. So you need not see God. You won't be able to see God, the supreme being. You will not be able to see God. You'll only be able to experience godliness through these avatars. Ram, Krishna, these were all avatars. So these avatars have made us interface with that supreme being. Now this is how the hierarchy works. और उसके बाद फिर हम लोग हैं नीचे, सबसे नीचे, और इसी में हम लोगों ने अगर अपने अंदर गॉडलीनेस जागृत कर दी तो वी कैन बिकम अवतार्स. मे बी that kind of godliness, if we are able to invoke in ourselves, we will be able to become avatars. Why not?
ये जो अवतार आए थे ये कोई ऊपर से अलग से नहीं आए थे, इन्होंने अपने अंदर रह करके दे इन्वोक्ड, दे रियलाइज्ड गॉडलीनेस इन देमसेल्व्स एंड देन thus they became avatars. And then they are spreading the message of harmony, peace, oneness. So this is how the entire hierarchy works. Thank you, Vijay Bhaiji. ji, because this is a humongous topic, humongous topic. I think we've already passed half of our time discussing it. Yeah. So I'm very glad. I'm very glad with the kind of questions that you put forth. The, these are Thank you, flabbergasting Bhaiji. questions. So, but given the strict and stringent framework of time, we have our own limitations, and we can touch the topic, if not very superficially, a little bit deeper, and there might be a few more questions cropping up. I'll ask you to keep coming up with these questions, and through you, who knows, so the listeners might get enlightened, and be thankful to you for asking these intriguing questions. Thank you, Bhaiji. Yeah. All right. Take care. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. Om Sai. And sorry to everybody for taking a lot of time, actually. No, I think Not at everybody all, is, not at all, not at all. yeah. I'm just spellbound by the kind of questions and then this massive answers that we've got today. It's like this episode of the satsang is going to go into the hallmark, go into the wall of fame, maybe, because this whole thing is like one big celebration. I think we could as well pack up now and say bye and get back, because that kind of strong feeling it's hit us with, the love gets an uplift, wherein Baiji specified that love needs to be unconditional no matter how it is being reciprocated or not. Then he brings in a Ghalib ka ghazal, and then we lead to the hierarchy of God. Oh my God, this is amazing. Thank you so much, both of you, wonderful souls out here. And like Vaiji said, we are running out of time. There are lots of more people who want to have their queries resolved. We'll move ahead. हम आगे बढ़ते हैं. मालविका जी काफी देर से hand raise करके बैठी हैं. Please, you can unmute and ask your question. And thank you, Vijay ji. Thank you. हेलो जी मालविका जी. साई राम भाई जी। ओम साई जी. ओम साई. मैं 2 साल से आपकी एक बुक खरीदी थी, तब मैं आपसे कनेक्ट हुई। बड़ा अच्छा लगा बुक पढ़ के। सबके जीवन में साईं, बातें एक फकीर की। जी, शिरडी जी. से मैंने आपकी बुक खरीदी थी। साईं बाबा के बहुत एक्सपीरियंस भी होते रहते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। बाबा ने दिया भी बहुत है, जैसा आप बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। जी, जी. वो हमेशा करती हूँ भाई जी, लेकिन जीवन में इतना उतार चढ़ाव रहता है कि आजकल मन बिल्कुल शांत नहीं है। ना जी. साईं सच्चरित्र पढ़ने में मन लगता है। आपकी रील्स जरूर मैं रोज देखती हूँ, जिसके थ्रू मुझे काफी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं, बट स्टिल कभी लगता है रील्स भी नहीं देखूं। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, लगता है कुछ बाबा सुन क्यों नहीं रहा, क्या मेरे से जी. गलती हुई है। पूर्व जन्म के अगर कर्म है तो साईं सच्चरित्र में लिखा है आप साईं साईं बोलिए तो वो कम हो जाएंगे। बट स्टिल जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं जो उस चीज को डिजर्व करते हैं, उनको ना मिलके वो ऐसे लोगों को मिलती है जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, तो बड़ा दिल दुखता है। लगता है क्या करूं बाबा, आप सुन रहे हो, मैं कैसे पूजा करूं, कैसे बाबा आपको मनाऊं, आप मेरी बात कब सुनोगे। मैं एक्चुअली आपको बताती हूँ, मैं ट्यूसडे को आपको याद भी कर रही थी। मेरा हस्बैंड ने अभी लंदन बिजनेस स्कूल में स्लोन कोर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो उसकी कल ग्रेजुएशन सेरेमनी भी थी। वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनी में काम करता था, लेकिन वो वहां से रिजाइन करके उसने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करी जी. बट अब उसको 1 साल होने को आ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही है। और मुझे इतना लग रहा है, मैं आज ही कह रही थी बाबा, मेरे हस्बैंड का नेम भी सुमित है, क्यों आपने सुमित को वहां पढ़ने भेजा एलबीएस, क्योंकि आपकी कृपा के बिना ऐसी इंस्टीट्यूट्स में साउथ एशियन कंट्री के बंदे का पढ़ना जाना पॉसिबल्स नहीं है आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में। इससे अच्छा तो वो प्रीवियस कंपनी में था, कम से कम हमारी अर्निंग हो रही थी। अब तो सब, क्योंकि वो लोन लेके नहीं गया, वो अपने ही पैसों से पढ़ने गया है। अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है, इन फ्यूचर 6 महीने बाद कैसे होगा बाबा। आपकी कृपा से, आपका दर्शन करके मैंने बुक खरीदी थी वहां से आपकी, शिरडी में नमस्कार करके, तब
फीस का पेमेंट किया था। बाबा आपकी रजा से पढ़ने गया है सुमित, कब जॉब मिलेगी बाबा, क्योंकि सोसाइटी में जीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल पड़ती है। और इतना मतलब इस एज में जब हर तरफ वॉर है, सब है, कब सुमित को जॉब मिलेगी बाबा। उसके साथ के काफी लोगों को मिली है, हम्म। बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा, मेरा किसी चीज में मन नहीं है भाई जी, टू बी वेरी फ्रेंक लग रहा है बाबा। इतनी परीक्षा मत लो कि आदमी का श्रद्धा और सब्र खत्म हो जाए। जी और जी मेरा जी बेटा है भाई जी, 23 साल का है, बड़ा बेटा, बाबा की कृपा से वो येल में है, जी जी एमबीए कर रहा है। वो मुझे रोज समझाता है, वो बहुत साईं डिवोटी है, वो बचपन से ही बाबा की कृपा है। ऑलवेज मुझे कहता है मम्मा, साईं बाबा आपके ओबीडियंट सर्वेंट नहीं है, वो जो करेंगे आपके लिए अच्छा करेंगे। वो आज भी मुझे समझा रहा था। जी जी बट मतलब मन बहुत अशांत है, मैं कैसे अपने आप को कूल करूं। मेरी मम्मा साईं डिवोटी है, वो आपको जी नमस्ते कहना चाह रही, बट मैं शांत नहीं हो रही भाई जी। मुझे बहुत, जिसे कहते हैं ना, अंदर से रोना आता है, नींद नहीं आती, बाबा बाबा करती रहती हूँ। जी प्लीज बाबा जी लिसन, जी जी जी। कैसे अपने आप को शांत करूं। आप आपका आपकी दुविधा हो गई, शब्दों में आपने समेट दी, और कुछ और बचा है? हाँ, मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहती हूँ। सुमित जब लास्ट ईयर लंदन में पढ़ रहा था तो वेल्स गया था, वहां होटल में उसको भाई जी ये लिखा मिला था, एक उसके रूम में, इसमें लिखा है इंजॉय योर स्टे साइन। और फिर वो मैंने उसको लेमिनेट करवा लिया। मैंने कहा ये, उसको एक पेपर मिला था, मैंने सुमित से कहा तुमने पूछा वहां कोई स्टाफ ने तो नहीं लिखा था? बोला नहीं, वहां कोई इंडियन स्टाफ था नहीं। बोला मैं जी एकदम थ्रिल्ड हो गया जब मैंने अपनी टेबल पे लिखा हुआ देखा एंजॉय योर स्टे साइन। मुझे जी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन स्टिल मैं बहुत अंदर से अशांत हूँ। जी मालविका जी, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आई कैन एम्पथाइज एंड मैं समझ सकता हूँ कि आपकी दुविधा जो है कि क्या होता है, क्योंकि आज के दौर में बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पैसा खुदा तो नहीं, मगर खुदा से कम भी नहीं। जी जी। तो आप मैं आपसे फिर वही कहूंगा जो आपके बेटे ने कहा है कि एक एक छोटे मैं मतलब बहुत ही छोटी उम्र में था, और भोपाल में एक जमाने में बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट होता था, खाना तब भी बहुत अच्छा देता था, अब भी बहुत अच्छा देता है। जी और वो उसकी एक तरबियत थी, उसकी एक खासियत थी उस रेस्टोरेंट की, अभी भी वही खासियत है कि वो समय बहुत लगाता है। और लोग उसके यहाँ शिकायत करते थे कि बहुत तुम्हारे यहाँ समय लगता है। तो उन्होंने अपने मेन्यू कार्ड में सबसे आखिर में लास्ट पेज पे सबसे नीचे छपवा दिया था कि इफ वी मेक यू वेट, इट इज टू सर्व यू बेटर। है ना? जी तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में उनको नौकरी देना नहीं है, हमारे हाथ में उनकी पढ़ाई करना नहीं था, मगर बाबा ने उनकी पढ़ाई करवा दी। हमारे हाथ में इंतजार करना है, हमारे हाथ में धैर्य रखना है, और अपने कर्म करते जाना है, अपने प्रयत्नों को कभी छोड़ना नहीं है। तो अगर हम अपने प्रयत्नों को करना नहीं छोड़ेंगे और धैर्य रखेंगे, तो मैं अपने अनुभव से आपको ये जरूर कह सकता हूं कि योर हस्बैंड, योर फैमिली विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज एंड प्लेजेंटली ब्लेस्ड। है ना? तो जी हम अपने आप को कितना भी उद्वेलित कर लें, हमारे टाइम पे चीजें नहीं ही होती हैं, नहीं होती, और इसको हमें मानना पड़ेगा। हमारे हिसाब से भी नहीं होती, जैसा हम चाहेंगे वैसी नहीं होंगी, पर कुछ साल बाद हम पलट करके देखेंगे तो अ, हमने जो मांगा था उससे कहीं बेहतर होता है हमारे साथ। तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखिए, अपने धैर्य को बनाए रखिए। आपके पति जो है वो जरूर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी पूरी तरह पूरा करेंगे, बाबा उनको पूरी शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, और आपको आज से बेहतर परिस्थिति में आप अपने आप को देखेंगी कुछ साल बाद। बट हमें जो है वो धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि उस हम जितना भी उद्वेलित होंगे, हमारे हिसाब से चीजें नहीं होंगी ना, क्योंकि करता तो हम है नहीं। और क्या चीज हमारा रास्ता रोक रही है वो भी हमको नहीं पता, क्या कारण है। तो हमने ये अगर पढ़ा है श्री साईं सच्चरित में
कि साहब आपके पुराने जन्म के पाप जो है वो कम हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि पाप कम हो जाते हैं, उनके फल का असर कम हो जाता है। क्योंकि हमको साईं में इतना दृढ़ विश्वास होता है कि बस जो है बेहतर समय इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो वो हमारे पापों के फल का कमजोर पड़ने का जो शुरुआत है वो होता है। और एक बात जीवन में याद रखिए कि सवेरा तभी होता है जब रात सबसे ज्यादा काली हो जाती है। सवेरे से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा काली हो जाती है, और कोई कोई रात ने कभी किसी सवेरे का रास्ता रोका नहीं है। तो ये समय भी निकल जाएगा। आप साईं का नाम लेते रहिए, बाबा में दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। किसी भी कीमत पर हो जाता है डावाडोल, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी परिस्थिति में मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं कि नहीं करना चाहिए, पर कदाचित अगर शायद मैं आपकी परिस्थिति में होता तो मेरे साथ भी शायद ऐसा ही होता। पर लेकिन बार बार मुझे बाउंस बैक करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। और हम सबको जो है वो साईं में पूरी तरह श्रद्धा रख करके अपने सब्र को बनाए रखना होगा। ठीक है। थैंक यू भाई जी, साई राम। ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। थैंक यू मालविका जी। जैसे चैट बॉक्स में विद्या जी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया है। इट इज सेड दैट नेवर डाउट द टीचिंग्स ऑफ योर गुरु, स्टिल वी कम अप विद सो मेनी क्वेश्चंस ऑन what we read. Does that mean we are still not true devotees? भाई जी आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं। Oh, just a minute. Preeti ji, I'm sorry, you'll have to repeat the question. There was some distortion in the signals. Please, once again, please. जी जरूर। It is said that never doubt the teachings of your guru. Still, we come up with so many questions on what we read. Does that mean we are still not true devotees? No, 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 no. It's not that way. It's not that way. कहीं ना कहीं हमारे समझने में चूक हो रही है कि हम कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो 250 पीसेस वाली जिक्सॉ पजल है, हम उसका एक पीस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक पीस जो है इट इज इल्यूडिंग अस। वो कहीं ना कहीं ऐसा फंसा हुआ है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। हमारी नजरों के सामने होता है वो जिक्सॉ पजल का पीस, पर हम उसको लगा नहीं पाते हैं। तो इट डजेंट मीन कि गुरु की कृपा हम पर कोई कम है या हम कोई अज्ञानी है। होता है कई बार दिशा भ्रम होता है, कई बार हम को रिलेट नहीं कर पाते चीजों को, कई बार हमारा ओरिएंटेशन ठीक नहीं होता है। तो वो कुछ होता है। बट देन अगेन वील हैव टू gather ourselves, our being, our thought process, and bring composure and calm. Try and do it, and then you will be able to find that missing piece of the jigsaw puzzle right in front of your eyes. So composure is a prerequisite. Your calmness of mind is a prerequisite to find that elusive piece of jigsaw puzzle. That's right in front of your eyes, but you're not able to find it. Beautiful. Vidya ji, I hope that resolves your query. Thank you so much, Bhai ji. Yes, Bhaiji always clears our queries. Never once have we been disappointed. It was as if Sai Baba was talking to me now. Thank you so much. Baba, I'm glad Baba does this. Thank you. And Vijay ji, if you're there around, आपने पूछा था ना प्रश्न कि वो डर और प्रेम में से क्या करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भय बिन होत न प्रीत। इसके बारे में कभी अगले बार हम चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर वाक्य है। ठीक है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया इसको, और इसमें और घुसने के लिए। भय बिन होत न प्रीत। भय बिन होत न प्रीत। You mean ढूंढिएगा। वो कैसे हो सकता है? Wherever there is love, there is no fear. हाँ, बस यही तो खास बात है। प्यार किया तो डरना क्या? There are so many famous songs on that. वो अलग चीज हो गई।
Okay, I'll hold that thought for now. We have so many questions on the go. आगे बढ़ते हैं. अंजलि जी ने चैट बॉक्स में टाइप किया है. ओम साईराम भाई जी, हम इंसान में संस्कार कैसे आते हैं? What is the definition of संस्कार? Is it indifferent from karmas? कर्म एंड संस्कारों का कनेक्शन है क्या? क्या कर्म संस्कारों को जन्म देते हैं और संस्कार कर्मों को इम्पैक्ट करता है? क्या इंसान संस्कार हर जन्म में स्क्रैच से अर्जित करता है या कैरी फॉरवर्ड करता है फ्रॉम प्रीवियस बर्थ? आप इसको प्लीज समझाएं. थैंक यू. बिल्कुल, हमारे पूर्व जन्म के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं. पूर्व जन्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, पूर्व कर्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं. और हमें जो है उनको लेकर के पैदा होना पड़ता है. इसीलिए जब पैदा होते हैं तो फिर एक एक समय के बाद जो एक एक गिवन टाइम पीरियड है, हमारा मुंडन किया जाता है. अधिकांश लोगों का मुंडन किया जाता है ताकि वो एक एक सिंबल है कि एक इट्स एन एक्टिविटी, इट्स ए मेटाफोरिकल एक्टिविटी कि जिसमें हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार यहाँ पर कट गए हैं और अब ये जो नए सिरे से सफा चट सर के साथ नए संस्कार लेने को तैयार है. अगर 18-19 नंबर का चैप्टर हम पढ़ते हैं श्री साईं सच्चरित का कि सदगुरु का मुझ पर अनुग्रह, उसके अंदर बाबा अपने गुरु की व्याख्या ही करना शुरू करते हैं कि जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में गया तो उन्होंने मुझे मूंड दिया, तो उन्होंने मेरे सारे पुराने संस्कारों को जलाने का काम किया ताकि मैं एक फ्रेश स्लेट बन जाऊं. और उन्होंने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगी, एक धैर्य का, दूसरा निष्ठा का. तो ये जब नए संस्कार आरोपित करने शुरू होते हैं हमारे अंदर, जब हम लोग संधारित करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो वो जो है वो नए सिरे से हमको जब संस्कार देना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उन संस्कारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और उन संस्कारों के इफेक्ट को अपने अंदर से निकाल लाने के लिए और पुरानों को निकालने के लिए वो धैर्य भी होना चाहिए. तो ये जो मूंडने वाली क्रिया है, इट इज अगेन अ वेरी वेरी मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन जो बाबा ने हमारे अपने गुरु के सदगुरु के बखान में कही है. और उन्होंने कहा है कि मेरे गुरु ने सबसे पहले मुझको मूंड दिया. यानी जब आप कोई भी नई चीज शुरू करना चाहते हो तो आपको पुरानी चीज को छोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग टीचर लोग कहते हैं कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. तो वो उस तरह से हम लोग जो है वो चीजों, क्योंकि समय बदल रहा है. एक एक जीवन में चीज याद रखिए, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर. तो ये समय बदलता है ना, क्योंकि जो अभी तक आप रास्ता तय करते आए हो, ठीक है, आपने अपना अनुभव ले लिया, पर वो टेक्निक्स, वो ट्रिक्स जिनको हम कहते हैं संस्कार, वो आगे हमको ले जाएंगे जरूरी नहीं, क्योंकि हर जीवन के हर पड़ाव पे अलग अलग संस्कारों का महत्व है. तो इसीलिए हम गर्भाधान संस्कार भी होता है, अन्नप्राशन संस्कार भी होता है, विद्यारंभ संस्कार भी होता है. इस तरह 16 संस्कार होते हैं जो जीवन के अलग 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 पड़ाव के लिए हमारे यहाँ मुकर्रर किए गए. तो हम जीवन में बढ़ने के साथ साथ उन संस्कारों को समझते चलें. तो दैट इज हाउ हम अपनी जीवन यात्रा सुखदायी तरीके से, सफलता पूर्वक और शांति से निभा सकते हैं. तो संस्कारों का महत्व बहुत है. और अधिकांशतः संस्कार जो होते हैं वो हमको कोई देता है, परिस्थितियां देती हैं, हमारा सदगुरु देता है, हमारे माता पिता देते हैं, हमारे यार दोस्त देते हैं. अब वो सिगरेट पीना, छुप करके सिगरेट पीना भी एक संस्कार है, पर वो अच्छा संस्कार नहीं है. तो वो ये सारी चीजें जो है हमको बाहर से मिलती हैं. हमारा जीवन हमको देता है. हम अपने आप संस्कार ले नहीं सकते, हम ग्रहण कर सकते हैं. हम अपने आप को संस्कार दे नहीं सकते. देने वाला तो कुछ और होगा, वो सदगुरु होगा, जिनको हम माता पिता कहते हैं, वो होगा, हमारी परिस्थितियां होंगी, हमारे जो स्कूल का सिलेबाय है वो कहीं हमको देगा. तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कारों का अपना महत्व है. और ऐसे ही वो जीवन धारणा बनाई गई कि जिस तरह हम असेंड करते जाए लाइफ में, उस तरह हम अलग अलग प्रकार के संस्कारों को इम्बाइब करते जाए. ओके, तो अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे संस्कार भी होते हैं. कहते जी हैं बिल्कुल होते हैं. कि अच्छे संस्कार लेकर आया है, ऐसा और बोला. अच्छे को पकड़े रहना और बुरे को छोड़ना वो विवेक का काम है, डिसर्नमेंट का काम है. वो डिसर्नमेंट जो आता है वो सदगुरु की संगत से आता है. ठीक है, थैंक यू भाई जी. ओम ठीक है. साईराम. ओम हाँ जी. साई, ओम साई. थैंक यू अंजलि जी. थैंक यू भाई जी. हम आगे बढ़ते हैं. रूमा जी ने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन टाइप किया है. इफ इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ बॉन्डेज, व्हाट डज इग्नोरेंस रियली मीन? Is it lack of information or mistaken identity?
How do we distinguish between reality and the stories our mind creates? Can an educated, accomplished person still be deeply ignorant in the spiritual sense? Absolutely, absolutely. Your being literate has nothing to do with being spiritual. The journey of spiritualism or spirituality is very, very vivid, very unique, and it is absolutely unconcerned with your being literate or illiterate. So any illiterate person could be very, very spiritually strong, sound. So absolutely not. Now we'll take the first part of the question to come to this conclusion. बताइए पहला part क्या था कि वो ignorance का क्या था वही है ना कि attachment something like that. The ignorance, what does it really mean? Is it in lack of information or mistaken identity? It is being unaware of your existence. जिसको साईं बाबा ने सच्चरित में देह बुद्धि कहा है. Your affliction or your attachment to your physical self. तो वो अगर हम उसी में हम समझेंगे कि हम यही बॉडी है और हमको जो है वो हमको इसको पोषित करने में, इसको सजाने में, इसको संवारने में, इसके अहंकार को पोषित करने में हमको जो है यही हमारा एंड ऑल एंड बी ऑल है, तो हम इग्नोरेंट है. It is being unaware of the mightiness of your existence. ठीक है, अगला पार्ट लीजिए क्वेश्चन का. What I just want to say, Om Sai, Sumit Om ji, Sai Bhai. it's like the desire what we have, like that is why the attachment. So what if Yes. the desire? What if the desire isn't the enemy? See, So you cannot be alive without having any kind of desires. But fulfillment of the desires should not be a precondition of your advancement in life, of your contentment. हो गया तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. हमें वो अगर ना हो तो और भी अच्छा, उसके साथ रिकंसाइल करना पड़ेगा. डिजायर्स रखिए मत, मैं मना करता ही नहीं हूं किसी को डिजायर्स रखने के लिए. मटेरियल फुलफिलमेंट के डिजायर्स भी रखिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के डिजायर्स भी रखिए. आप स्पिरिचुअली तभी आप एडवांस कर सकते हैं जब आपके मन में स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की डिजायर होगा. अगर वो नहीं होगा तो आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को एनहांस नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे. तो डिजायर्स होना बुरी बात नहीं है, बट रोड ब्लॉक्स आएंगे. रोड ब्लॉक्स आएंगे, वो हटेंगे तो बहुत अच्छा. वो आप उनके ऊपर से कूद करके निकल जाओ तो अच्छा है, आप उनको साइड में करके निकल जाओ तो अच्छा है. और वो नहीं हटे और वहीं पर आपको अपने कंटेंटमेंट आ जाए उन रोड ब्लॉक्स पे खड़े खड़े, वो आपका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट. वो so आपके the लिए problem वो is dependence. डिपेंडेंस, It's क्योंकि not हम the लोग वो ये issue मैंने of वो जो desire. लास्ट मैंने बात की थी ना 37th अध्याय में 49 और 50 नंबर की जो दो ओवियां हैं, Yes, it is in एग्जैक्टली वही context वही with that. आपका जो है Yes. हमारा जो है वो प्री कंडीशन हो जाता है ना कि कंप्लीट होगा तो ही हम इसको फुलफिलमेंट मानेंगे. वो हमारे हिसाब से फुलफिल हो जाए, उसकी कोई प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए. वो हमारे हिसाब से प्री कंडीशन कभी नहीं होनी चाहिए. तब हम कर्म के फल में फंस गए, क्योंकि हमने कहा कि यार कर्म तो हमने कर लिया, अब हमको फल भी हमारे अनुरूप चाहिए. तो फल जो है वो आपके अनुरूप कभी नहीं आ सकता. इस बात की आप कब, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं. फल इज डिपेंडेंट ऑन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, कर्म इज डिपेंडेंट ऑन इंट्रिंसिक फैक्टर. तो आप कर्म और फल को जो है कभी कोरिलेट मत करिए. जो भी प्यार से मिला हम उसी के होली, उस टाइप का है ना कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया. वो भागवत गीता में तो बोलते हैं ना, you have no right to the action and you have you have to every the right to action, but but not the fruits. The outcome, yes. Action.
वो Yes. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु Ma Faleshu कदाचन। Kadachana. Yes. तो Yes. कर्म पर Yes. आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। पर इसको हमको क्या व्याख्या इसकी बड़ी अलग तरीके से बचपन में सिखाई गई है, विच इज अ मडल्ड व्याख्या, डिस्क्रिप्शन जो इसका बताया गया है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये इसका मतलब है ही हाँ, नहीं। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। नहीं है। हाँ, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। अब मैं अगर ये सोचने लगूं कि चलो भाई मैं हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लूंगा, तो उस पर मेरा अधिकार ही नहीं, मैं कहां से खुलवा पाऊंगा उसको? हाँ, तो मेरा काम है क्या है? मेरा कर्म है कि मैं अपने घर में फ्यूल को, ईंधन को बचा के इस्तेमाल करूं। अब मेरा कर्म ये हो जाएगा, मैं हॉर्मुज का स्ट्रेट तो खुलवा नहीं सकता, तो मैं थोड़ी किलोमीटर गाड़ी कम चलाऊं, मैं इंडक्शन चूल्हे पे काम करना शुरू कर दूं गैस चूल्हे की जगह पे। हाँ, मैं जो है घर में बिजली थोड़ी सी कम जलाऊं, ताकि अगर मेरे को 2 पैसे बिजली में बचना और पेट्रोल में ज्यादा खर्च होने तो मेरे घर का बजट गड़बड़ाए नहीं। ये मेरे हाथ में है। yes. तो जो मेरे Yes. हाथ में Thank नहीं you. है उसका मैं कुछ नहीं कर Yeah. सकता, Yes. है ना? Thank you. तो Yes. Thank you. आपके Thank you. प्रश्न का और भी कोई Om Sai. पार्ट बचा है which remains unaddressed? Uh, I wanted to know that how do we distinguish reality, like, and the stories that our mind creates? Our mind creates different perspectives, different things. Yes. But we keep confused between the reality. That is, what is the reality and what is our mind? उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं, माइंड रीडर्स कहते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। our mind is limitless. It can go anywhere. आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं और आप यूएस में टाइम स्क्वायर पे घूम के आ सकते हैं। तो Yes. your mind has that kind of power. when हम उसको घुमा देते हैं, हम इतना सब विचार करने लगते हैं, और अंत में अगर देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जो हमने विचार की वो होती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर फियर्स Yes. अल्टीमेटली बिकम अनफाउंडेड। वो Yeah. होते ही नहीं है। Yes. सो वो हमारी एंजाइटी, फियर, वो सारी चीजें जो है ना, दोज बिकम एब्सोल्युटली इररेलेवेंट इन द लार्जेस्ट पिक्चर ऑफ लाइफ। So overthinking is a disease. It needs to be addressed. It needs to be taken care of. और उसके लिए सबसे बड़ा है कि हमको ही अपने ओवरथिंकिंग की लगाम खींचनी पड़ेगी। अगर हम नहीं खींचेंगे तो हम उसमें उलझ करके रह जाएंगे। इसमें कोई बाहर से नहीं आएगा। आपको कोई सेडिटेशन वाली मेडिसिन दे देगा, कोई आपसे कहेगा कि तुम जाके वो ध्यान करो, ये करो, वो सब नहीं होने वाला आपसे। वो आपको, यू गॉट टू रिकंसाइल टू द फैक्ट दैट दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी and I've got to see things in the right perspective. और ये this overthinking, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राग द्वेष के कारण होती है, अंग्रेजी में कहते हैं prejudices and biases के कारण होती है। तो ये जो हो जाता That है is हमारे why, yes, please, sorry. नो परफेक्ट। Please carry तो on. इसीलिए हमको सदगुरु की शरण में जाना पड़ता है, जहाँ पे सदगुरु हमको ये डिसर्नमेंट का एक हमारे अंदर एक भाव पैदा करता है कि नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीव इट, फॉरगेट इट, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दिस। You have no control over what the other person would do or does. You have control over what you can do or what can happen through you. Now that is where discernment comes into play. That सदगुरु का इंपॉर्टेंस वहां पे समझ में आता है कि नहीं यार, I've got to conduct myself in this way. दूसरा जो करेगा वो मेरे हाथ में है ही नहीं। वही कर्मण्यवादी करस्ते माँ फलेषु कदाचन। अब ट्रम्प जो है वो जाकर के 4 बॉम्ब अभी इराक पे गिरा देगा और फिर वॉर शुरू हो जाएगी। Yes, हम that कुछ is नहीं why कर पाएंगे। probably the calming the mind is more important. कामिंग द माइंड, और वो आप खुद ही कर सकते हो। ये ज्यादातर Yes. साइकियाट्रिस्ट के पास हम जाते हैं, उनको सोने वाली मेडिटेशन दे देता है, तो वो हमारी एंजाइटी को सबसाइड कर देते हैं। तो हम दिन भर जो है वो नींदे रहते हैं, नींद में रहते हैं। नाउ दिस इज नॉट गोइंग Yes. टू हेल्प। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म फिक्स। द लॉन्ग टर्म Yes. फिक्स कम्स फ्रॉम विद इन। Yes. Thank you so much. Thank you so much, Suniti. ओम साई, थैंक यू वेरी Om मच। Sai. Om Sai. थैंक यू रुमा जी। आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। भाई जी एग्जाम्पल ही ऐसे देते हैं, सीधा बुल साइड।
छप जाता है माइंड में। हम भाई जी आपकी अनुमति है तो सुजाता जी काफी देर से हैंड रेज किए, एक क्वेश्चन ले लें और। देखिए, आप यू आर द कोऑर्डिनेटर, मेरे हिसाब से आपका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन आप इसको स्ट्रेच करना चाहती हैं, आप करिए। इट्स एंटायरली इन योर हैंड्स। ओके देन योर विल डिटरमिन। सॉरी सुजाता जी और प्रमोद जी, हम आज का ले लीजिए, अगर आपको आज के आपको सत्संग आपने को उनको यहीं। उम्मीद बंधाई है तो ना उम्मीद मत कर दीजिए, ले लीजिए उनका प्रश्न अगर आपको लेना है तो तुरंत। ओके सुजाता जी, आपका जैकपॉट लगा है, प्लीज अनम्यूट करके जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच प्रीति जी। ओम साई राम भाई जी, ओम साई राम प्रीति जी, ओम ओम साई राम साईं सुजाता एवरीबॉडी। जी, ओम साईं जी, कहिए। जी भाई जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। आपकी एक रील देखी आज ही मैंने, जिसमें आपने डॉक्टर अनीता रजानी की किताब का जी, मतलब उसका एक समथिंग एक्सर्प्ट दैट। पढ़ा है मैंने उसके अंदर जी। जी जी जी। तो उसमें मतलब द थिंग वाज कि आप अपने कि बाबा ने कहा है दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द वेलफेयर ऑफ योर लव्ड वंस इफ यू आर माय डेवोटी, क्योंकि मैं दे आर अ पार्ट ऑफ माय फैमिली एज वेल, राइट। हम्म। तो और उसने उसके आगे कहा कि पर उनके कर्म को अपने ऊपर मत लीजिए, डोंट जी टेक जी, देयर कर्मा ऑन टू योर सेल्फ। नाउ दिस आई डेंट डेफिनेटली। अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर किसी का कर्म उसका अपना होता है। यू कैन नॉट टेक एनीबडीज कर्मा ऑन टू योर सेल्फ, मतलब उसके जो भी होंगे पुराने जन्म या करंट जी जन्म, जो जी, भी उसके कर्म है वो उसके खुद के हैं। तो ये क्या आप समझा सकेंगे थोड़ा सा? आई कुड आई यू गिव यू प्लीज? स्मॉल एग्जांपल। आप जैसे समझिए, जी। यू हैव एन ऑफस्प्रिंग, यू हैव एन ऑफस्प्रिंग जिसको उड़ाने की आदत है, पैसा उड़ाने की आदत है। ओके। ठीक है। हाँ मैं जी। ऐसा मतलब ये चीज हाइपोथेटिकल अंडरस्टूड। एग्जांपल दे रहा हूँ ये। ऑफ कोर्स। जनरली हम घरों में आजकल देखते हैं, ऐसा होता है। जी जैसे जी जैसे मटेरियल चाहतों की जो है वो फहरिस्त लंबी होती जा रही है, उसमें जी। ऐसा होता है कि आपका एक उड़ाऊ बच्चा है, बहुत ज्यादा उड़ा रहा है। हम्म ठीक है। हम्म हम्म। अब क्या हुआ कि उसके प्रारब्ध में है कि उसके पास जो आएगा वो उड़ जाएगा, वो अच्छा। कमाएगा, उड़ा देगा। जी। आप उसका कर्म अपने सिर पर कैसे ले रहे हो? बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो अपने पैरों पे खड़ा है, हम्म उसकी सारी चाहतें पूरी कर रहे हो, आप उसके जो है वो खर्चे अपने सिर पे ले रहे हो। अल्टीमेटली क्या है कि उसके भाग्य में तो उड़ाना लिखा है, वो उड़ाता हम्म जा रहा है, और वो अपने उड़ा रहा है और आपके भी उड़ा रहा है। धीरे हम्म धीरे आप पौपा हो गए। हम्म तो आपने हम्म। उसका कर्म अपने सिर पर ले लिया और आपको भुगतना पड़ रहा है। आप उसका कर्म अपने अच्छा। सिर पर नहीं ले सकते। जी। है ना? हम्म हम्म। अब क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा। एक लड़ाकू किस्म का बच्चा है आपका। अच्छा। ठीक है। वो लड़ जी। करके आ गया मोहल्ले वालों के साथ। हम्म वो कोई किसी एक पहलवान के बच्चे को उसने जाके छेड़ दिया, हम्म और पहलवान ने आके उसकी सुताई लगाने के लिए आगे आ गया। अब हम्म आपके बच्चे के प्रारंभ में उसकी हरकतों के कारण पिटना लिखा है, बट हम्म। आपने क्या किया, आपने अपने आप को आगे कर दिया। अच्छा। पिटना उसको था, आप पिट गए। अच्छा। ओके। वो भाग गया, हम्म हम्म। आपने उसका कर्म अपने सिर पर ले लिया। अच्छा। ओके तो ओके। क्या हुआ कि जो आपको नहीं भोगना था वो आपने भोग लिया, और हम्म उसको जो अभी भोग करके उसको फ्री हो जाना चाहिए था वो फ्री नहीं हुआ, उसको आगे भोगना पड़ेगा। हम्म। तो आपने उसकी ओके। सफरिंग को और लंबा कर दिया, आपने जी। अपनी सफरिंग यहां बढ़ा ली। ओके ओके। ठीक है भाई जी, ये दो एग्जांपल तो मैं समझ गई। ठीक है। जी, बस तो ये यही है कि किसी और के कर्म अपने सिर पर मत लीजिए। इसमें साईं सच्चरित्र में बड़ा क्लियर दिया हुआ है, बाबा ने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि हम्म। सभी दानों में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जी। उसमें किसी पाने वाले की योग्यता नहीं देखी जाती। फिर उसके हम्म आगे वो जोड़ते हैं कि किसी को धन देना हो, जमीन देना हो, उसमें हम्म। उसकी योग्यता देखनी पड़ती है। यहाँ इसी प्रकार से किसी और के कर्म आपको खाना खिलाने में नहीं देखने पड़ते। अच्छा, हाँ ये तो है। है ना? तो जी। आपको किसी और के कर्म, वो भूखा है उसको आपने खिला दिया, फेयर इनफ। हम्म। बट उसके आगे की चीजों में आपने अगर उसके उसके कर्म आपने अपने ऊपर ले लिए तो आप भी सफर करेंगे, और उसकी सफरिंग खत्म नहीं होने वाली इससे। हम्म। ठीक है। जी। भाई जी, वो बुक का नाम आप बता सकेंगे एक और बार? मतलब कौन सी इज बुक इट का? इसी का जिसका एक्सेप्ट आपने रील में पढ़ा था? दी अवेकन्ड साई विद इन यू। ओके। द अवेकन्ड साई विद इन यू। ठीक है भाई जी। डॉक्टर अनीता राजानी ने लिखी है। जी जी जी, उनके पॉडकास्ट देखती हूँ मैं, आपके साथ भी देखा जी, है। और डीप जी टॉक्स, जी जी जी। जी जी जी। ठीक है भाई जी, शी थैंक यू, इज अ थैंक यू वंडरफुल सो मच। पर्सन। ओम थैंक यू, साई राम। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू थैंक सुजाता यू जी। सो मच।
Thanks to Baba. We can just end that by saying that we can just educate someone and move on, not hold on to anything. अगर इसको इस perspective में लें तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Yes, thank you भाई जी. प्रमोद जी, I'm really sorry. हम आपसे माफी चाहते हैं. हम समय हो चला है. आज का सत्संग यहीं विराम देंगे. हम आपसे अगले हफ्ते मिलने की आशा रखते हैं और भाई जी से भी. आई जस्ट लाइक टू से होमवर्क तो रह प्रमोद गया. जी को हम इतना स्पेशल प्रिविलेज आप अश्योर कर सकती हैं कि बाबा ने चाहा और अगले हफ्ते सत्संग हुआ ये वाला, तो आप या जो भी एंकर कर रहा हो प्रमोद जी का प्रश्न सबसे पहले ले लें. इतना हम स्पेशल प्रिविलेज उनको प्रॉमिस कर सकते हैं. टिकट, डायरेक्ट टिकट, फर्स्ट एंट्री. प्रमोद जी जी. जी. थैंक यू भाई जी. थैंक यू प्रमोद जी. थैंक यू. भाई जी, एक्सट्रीमली homework सॉरी, question. एक्सट्रीमली सॉरी. हाय राम. Yes. Oh, just wanted to wrap this. आज का होमवर्क रह गया. आपने एक और होमवर्क दिया है, तो नेक्स्ट वीक हम नहीं, आज का होमवर्क रूमा जी के पिछले हफ्ते का होमवर्क आज रूमा जी के क्वेश्चन में पार्टली कवर हो गया है. पार्टली कवर. यस, डन. पार्टली कवर हो गया है. ओके. थैंक एज अ यू. वंडरफुल एंड मेरिटोरियस स्टूडेंट वो अपना होमवर्क करके आई थी. करके आई. यस. Say cheers, Roma ji. Wonderful. Thank you so much, भाई जी. ओम किन साई. शब्दों में आपका आभार प्रकट करें. थैंक यू सो मच. बाबा का आभार प्रकट करें. बाबा भली कर रहे हैं. बाबा भली करे. थैंक यू. ओम साई. ओम साई. Thank you. ओम साई. ओम साई राम. हम आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ हमसा ओम जी साई जुड़े. राम. हमसा जी, ओम आप साई हमें. ओम साईराम. हमसा जी, वी वेटिंग फॉर योर भजन्स. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू. कैन आई स्टार्ट? यस यस, श्योर. जस्ट दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई. कब से तुम्हें पुकारूं साई, अब ना देर लगाओ. कब से तुम्हें पुकारूं साई, अब ना देर लगाओ. दे दो दर्शन साईनाथ जी, दे दो दर्शन साईनाथ जी. नैनों की प्यास बुझाओ, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई. सुना तुम्हारे दर से कोई कभी गया ना खाली. मेरी बारी आई तो क्यों इतनी देर लगा ली. कब होगी मेरी आशा पूर्ण, इतना तो बतलाओ. दे दो दर्शन साईनाथ जी, दे दो दर्शन साईनाथ जी. नैनों की प्यास बुझाओ, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई. जब भी कोई विपदा घेरे, मेरा मन घबराए. दुख संकट की घड़ियों में याद
तुम्हारी आए। बन के केवैया साई हमारी नैया पार लगाओ। दे दो दर्शन साईनाथ जी, दे दो दर्शन साईनाथ जी, नैनों की प्यास बुझाओ। दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई, दर्शन दे दो साई। नजर साई बाबा की जब से हुई है, नजर साई बाबा की जब से हुई है, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है। नजर साई बाबा की जब से हुई है, नजर साई बाबा की जब से हुई है, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है। हुए दूर मुझसे सभी दर्द गम है, साई की रहमत जो बरसने लगी है। मुझे दुनिया वालों ने जब है सताया, साई ने अपनी शरण में लगाया। मुझे दुनिया वालों ने जब है सताया, साई ने अपनी शरण में लगाया। साई ने अपनी शरण में लगाया। मेरे सर पे साई ने रखा हाथ जब से, मेरे सर पे साई ने रखा हाथ जब से, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है। नजर साई बाबा की जब से हुई है, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है। मिला जब से साई का मुझे मंत्र प्यारा, ओम साई राम, ओम साई राम। मिला जब से साई का मुझे मंत्र प्यारा, श्रद्धा सबूरी ने मुझे है उबारा। श्रद्धा सबूरी ने मुझे है उबारा। शिरडी सा पावन जब से हुआ मन, शिरडी सा पावन जब से हुआ मन, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है। नजर साई बाबा की जब से हुई है, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है, बदलने लगी है। नजर साई बाबा की जब से हुई है, किस्मत हमारी भी बदलने लगी है, बदलने लगी है,
बदलने लगी है। ओम साई राम। मन को देता जो आराम, मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साई नाम की ज्योत जला के दुख दरिद्र पे लगा विराम। साई नाम की ज्योत जला के दुख दरिद्र पे लगा विराम। श्रद्धा सबोरे मन में बसा के साई करती तू है प्रणाम। श्रद्धा सबोरे मन में बसा के साई करती तू है प्रणाम। श्रद्धा सबोरे मन में बसा के साई करती तो है प्रणाम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। मन को देता जो आराम, आराम आराम। मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साई कृपा से मिटती चिंता, बनते हैं सब बिगड़े काम। साई कृपा से मिटती चिंता, बनते हैं सब बिगड़े काम। साई चरणों में शीश झुकाना है मेरा बस एक ही काम। साई चरणों में शीश झुकाना है मेरा बस एक ही काम। साई चरणों में शीश झुकाना मेरा बस एक ही काम। ओम साई राम, ओम साई राम। साई कृपा से मिटती चिंता, बनते हैं सब बिगड़े काम। साई चरणों में शीश झुकाना है मेरा बस एक ही काम। साई चरणों में शीश झुकाना है मेरा बस एक ही काम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। मन को देता जो आराम, एक ही नाम है साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई साई राम, ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम, साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सर जी, ये जो आपने लास्ट में आलाप लिया, it just took us to some other world. Beautiful, amazing. Thank you so much. Thank you so much. This means a lot to me. Thank you so much. Om Sai Ram. You have some other version? Yes, Yeah. ma'am. Okay. Shall I continue, or Yeah. would you go ahead with Yeah. the You continue. I'm sorry to have interrupted. No worries. If you want to go ahead with Aarti, that's also fine, ma'am. No worries. नहीं, आप continue कीजिए. Okay, sure. Thank you. मन दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साई, मेरे साई। मन दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साई, मेरे साई। जीवन में अमृत रस भर दो, जीवन में अमृत रस भर दो, मेरे साई, मेरे साई।
माया ने अपनी डोरी से बांध रखा है, बांध रखा है। माया ने अपनी डोरी से बांध रखा है, बांध रखा है। मोह जाल से मुझे छुड़ाना, मोह जाल से मुझे छुड़ाना, मेरे साईं, मेरे साईं। मन दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साईं, मेरे साईं। आँख मूंद कर जाग सकूं और आँख मूंद कर जाग सकूं और देखो तुझको, देखो तुझको। सच्ची भक्ति दे दो मुझको, सच्ची भक्ति दे दो मुझको, मेरे साईं, मेरे साईं। मन दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साईं, मेरे साईं। साई 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 बाबा साई, साई 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 बाबा साई। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे, प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई, साई राम साई राम साई राम साई राम शिरडी वाले साई। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे, प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। खाली झोली भरता साई, करता मुरादे पूरी साई। खाली झोली भरता साई, करता मुरादे पूरी साई, करता मुरादे पूरी साई। एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लव्स साई, साई लव्स एवरीबॉडी। साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई राम साई, साई राम साई राम साई राम साई राम शिरडी वाले साई। साई राम साई राम साई राम साई राम ओम साई राम, साई राम साई राम साई राम साई राम ओम साई राम। Everybody loves Sai, Sai loves everybody, everybody loves Sai, Sai loves everybody. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, शिरडी वाले साई। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। Thank you so much for everyone, to everyone for
your very sweet, supporting words. It means a lot to me. Thank you so much once again. Om Sai Ram. Sai Himsaji, thank you for taking us to some other world, taking us closer to Baba with these beautiful, beautiful bhajans and your amazing melodious voice. Thank you. Pleasure is all Uh, mine. Thank you. आप आरती भी करेंगे? Just a minute, ma'am. Can you tell me the? Is it okay if I do it next time? Will that be all Yeah, right? yes, no problem. No problem. Thank you so much. Sorry about today. हम आरती देख लेते हैं यूट्यूब का. I'll just share. Just my screen is visible. Stop! Before you buy this. This exact product could be cheap. शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्र भागा भाव पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहू याहू अवघे जन करा बाबासी वंदन साईसी वंदन करा बाबासी वंदन गणू म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव पाव माझे आई. साई, हम आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं. आप सभी से निवेदन है Today morning completed. Yesterday morning. विराम करके आप लीव कर सकते हैं. Yes. Sai Ram. Sai Ram. Yeah, fine. Om Whatever. Sai Ram. Jai Ram. Om Sai Ram. Om Network. Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. You are conducted very well, Ji. Thank you, Lakshmi ji. Om Sai. Om Sai Ram. Thanks to Baba, he makes everything possible. Om Sai Ram.